Good morning, everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Good morning, sir. So, guys, there's a lot of auto news today, uh, but I would like Mithilesh. Could you start your news, Mithilesh? Mithilesh, will you start your news? Okay, fine. But Mithilesh, the news that you have sent, is this the way I have told you to send pointers? Is that what I've? This is how you write the news? Means I will suggest that you are not following the instructions given, or you don't want to write it. I'm not sure because all the news that you have sent me are in the same format. Fine. Okay. Okay, Sugash, on the tractors. Sorry, on the retail inflation. Sugash is not delivered, sorry. Okay, Ram, can you start on tractors? Yes. Yeah. Hi, good morning, everyone. Today I wrote an article about tractors. Domestic tractor sales in the month of April were up 8% to 82,000 units. Mahindra was leading the pack with growth in sales of 8% to 38,000 units, followed by Sonalika tractors, which witnessed a growth of 3% and 9.9K units. Escorts saw a decline in growth of Any reason बताओ, 4%. what was the reason of increase in decrease? Yes, I'll tell you, sir. The growth was driven by Chaitra Navratri festival in the month of April and favorable crop prices and high procurement activities by the government. Mahindra hold in this month 46% market share, followed by Sonalika, which holds 12%, and Escorts 9%. On the production front, tractor output was approximately 93,000 units, which was up 20% year and 10% sequentially. Okay. Higher demand, sorry? Go ahead, sorry, go ahead. However, demand is expected to be resilient, supported by strong Rabi crops activity, elevated water reservoir levels, and continuous government support in farm sector. That's it, sir. Okay. सिर्फ ये historically था, कुछ projections नहीं था इस पर? Sir, projections, Mahindra was projecting mid to high single digit, and Escorts, Mahindra was projecting high single digit growth, and Escorts was projecting mid to single digit growth, low mid to single digit growth in 2026. Okay. So Yes. इसका market share कितना है महिंद्रा का? Now it is 46%. Okay. In this current year, but I think overall it is for the year it is high. Okay, this was for the month, na? 46%. Yes, sir. I just calculated it. Okay. And what was for Sonalika? 12%. Yes. So it is 9%. Okay. Hmm. तो वो साइड में ना MS लिखा है 9%, वो क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा था. Yes, sir. Okay. Okay, Mega, what do you have on Suzuki? Mega? Okay, Dhruv? Hello, sir. Hi, good morning. Hi, good morning. Good morning, everyone. So my news is from
Financial Express regarding the Suzuki. The voice is a little low, Dhruv. Sorry. Yeah, Sir, is voice- it audible now? yeah, it's audible now. Yeah. Yeah. Sorry for that. Yeah. So the news is the Suzuki remarks like 21,000 crores in India, and Maruti to boost sales with six airbags in the early cars and the new SUVs. So the Suzuki Motors expect in India. So wait a minute. Sorry. Yeah. So in FY26, Suzuki thinks car sales will go up to 1 to 2% in India, even though overall demand is still a bit weak. So even though Suzuki SUVs are selling well, other types of cars are not doing great right now. Suzuki plans to launch two new SUVs. One of them is being electric SUVs is BEV Vitara. Your voice is a little low, Dhruv. I don't know, it's coming from far away. Hello. It's still low. Oh, sorry, sir. Hello. Hello. Hi. Yeah. Hi. Is it good now? Yeah, it's good. Yeah. Yeah. So I'll start once again, okay? Yeah. Yeah. So in FY26, Suzuki thinks car sales will go up to by 1 or 2% in India, even though overall demand is still a bit weak. Even though SUVs are selling well, other types of car are not doing great right now. Suzuki has also planned to launch two new SUVs. One of them is being an electric SUV, which is BEV Vitara, which they hope will boost their growth. Suzuki is putting a huge investment in India. It's around 21,000 crore in FY25 to 26. And half of that amount will go into India to build more car and expand production. Maruti is Which building a is new this production? Expand uh, production of. so expand production for the cars, for the personal vehicles. So they have already have one plant in Haryana, Kharkhoda. They are they are planning to make one more plant in the same region, Kharkhoda. So they want to produce around 2.5 lakhs cars every year. This will also help them to making cars like Brezza. Okay. And so they are like recently by the last year quarter end, the chairman have told that Maruti is gonna make like airbag standard in its cheap car model like Wagoner, Alto, Celerio, and Eco. This car cost is below 6 lakhs and will now come with a better safety features. So this is regarding cause the India is having a good infrastructure and like roads nowadays, so safety has become a major concern. And Okay. not all Maruti cars have a six bags. Cars like Baleno, for Fronx X, Ertiga, and XL6 still don't have six airbags as standard, even though they are not more expensive. And so Maruti's exported 3.3 lakhs cars in FY24, and they plan to sell more in the place like Africa and Middle East. And so they have also make an initiative by growing exports and making electric vehicles. Maruti wants to contribute to the Make in India campaign and become a global hub for a car production. Okay. That's it, sir. Okay, fine. So guys, yesterday, I was sorry, not yesterday, on in a class on weekends, I was talking about their investment thesis. So we have got one of the investment thesis over here. What are they doing? They are investing, for new product. Correct. So 21,000 crores they are investing for new launches. Plus, new launches, that 21,000 crore is a part of this new plant addition. So we know that they are expanding, and they are also coming up with new models. Which are these new models? That is your SUVs, few SUVs, and the EVs. So they are also coming into hybrids. So if you research more, they are also into hybrids. So these are the two investment theses we have got. And a third was the export one. So if you want to write anything on the exports, there is not more to write on the exports. But okay, this is the part you can just write. Where are they focusing on? Africa and Middle East. You don't have to talk much about exports in the interviews. But those three things, so you have got for your investment thesis. That if I want to buy Maruti, what are the reasons? This are the reasons. And now the question, the follow-up question comes over here. You were talking about SUVs, demand is trending on. Why are you talking about entry-level cars? Okay. See, the question will come.
if you are saying that the overall there is a strong SUV sales, then why are you talking about entry-level car in your investment thesis? Now, what is that? What is the counter answer to that? That, sir, the entry-level cars are not doing great in India, but they are doing great in the exports. Correct? We have seen that. Yes, sir. Yesterday we had the news for the same. Yeah, this is coming from last so many days that exports are growing, but what Yes, is sir. growing in exports? It is the entry-level cars which are growing in exports. So always they usually ask for, they always do an counter attack on you whenever you say something. They want to talk about, they will try to cross you. So you should have all the answers because this is quite contradictory. मतलब तुम एक जगह बोल रहे हो कि एसयूवी सेल्स ग्रो होगा और फिर बोल रहे हो कि अरे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है फॉर 6 एयर बैग्स। तो मेरा ये क्वेश्चन होगा कि अगर ये एंट्री लेवल कार चल ही नहीं रहे तो इस पे इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? बट यू हैव टू गिव दिस कि so this is how you write your first two parts of your investment thesis. And then I talked about commodity, that you need to know the commodity cost, what is happening with the commodity, and the expand on the margins. How will the EBITDA margins play out, or the competitors' EBITDA margins? What are the competitors doing? But abhi majorly Maruti is a large player, so we have to focus on sales. So what is growing? Okay, they are industry is not expected. See, now this is industry is not expected to grow. Industry is expected to grow only 1 to 2%. But we should think about a larger picture, 2-3 years from now, or maybe 5 years from now. Acha, Dhruv, one part, you should never write 0.25 million. It should be 250,000. Okay. Okay, sir. 0 point nahi aana chahiye whenever you write Okay. Okay. Sorry for that, sir. something. And यहाँ पे see, now you have written millions. यहाँ पे क्यों करोड़ लिखा है फिर? Okay. Yeah. In billions, ना? Yeah. सर वो न्यूज़पेपर में वो येन को कन्वर्ट करके इसके लिए सॉरी फॉर दैट सर. नहीं, this is just लिखा. You have written very well. I appreciate that. But वही, these are cosmetic changes, but that's fine. अब इससे क्या होता है ना? Whatever you write, my purpose of looking at this ना, I have not read your news. But Okay. since you have written it in a better way, I think यार इसने ये लिखा है PV growth 1.6%, का investment हुआ है. So investment कहाँ पे हुआ तो it has done in Kharoda plant. So I have just Yes, sir. others also guys, see, he has written it very well. Percentage, one data point, again a data point for what? New launches. This was despite weak demand. Why it is growing at 1.2% despite weak demand. Entry-level cars to get. This is just an update. Entry-level cars to get in 6. But because this is a part of this investment, why are they doing investments? Exports outlook with 0.33 million. So you can also write it. Dhruv, you can write it here Yeah. only. Export outlook strong with focus on Africa and Middle East. Okay. Very heading हो गया. Okay, sir. So क्योंकि मुझे what happened कि since you have highlighted it over here, I found out कि exports कहाँ पे हो रहा है तो Africa and Middle East में, but Okay. इधर ही होता तो भी चलेगा. But this is fine. सीधा हेडिंग में ही ठीक है Heading में हो समझ गया गया. तो Okay. अच्छा हो जाएगा ना पढ़ने Okay. में. Because Okay. listen, I will only read your headings. Yeah. If it excites Got me, it, sir. then only I will read your other things, your paragraphs. Okay. Okay, sir. But good, you have Yeah. written it very well. Thank you, sir. Now in same way you have to write your conference calls, huh? Conference calls of all the Yes. companies. Start writing Yes, it. sir. Yes. Sir, can I say something? Hello. One second. Ashutosh, anything on inflation? Well, there was yesterday's news only on Business Standard that I spoke yesterday. Achha, it was of yesterday's news. Okay. And what about FMCG? There was a news about FMCG about Britannia's results. So Britannia is expecting a gradual recovery in the FMCG demand, not a higher side recovery, as they're saying that hockey stick growth will be unlikely. And they are also telling that due to the earlier onset of monsoon, there is a risk of commodity inflation. And they have increased prices by 5 to 6% in the last quarter. And the major reason was the 7% higher MSP offered by government to wheat, and also 83% increase in cocoa, 54% in palm oil, and 21% increase in milk prices in the FY25. Okay, so so they are expecting a price hike. ठीक है ना?
They are expecting a price hike, and they are also telling that their revenue will increase due to price hike, majorly by the price hike in this quarter. And why is this inflation gonna increase? Is because it has been at lifetime low or maybe at lower levels? Is that the only No, reason? no, they are telling that due to unseasonal rains in many parts of the country, inflation might increase of commodities. Okay, 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 fine. Yeah, rains, there are uncertain rains overall. No, I think IPL matches have also stopped because of rains, few matches. And yeah, there is also, I can see the unseasonal rains. Again, it will lead to, increase in inflation. So, every month at the start, you get an inflation data. So, first to 15 months, 15 days के बीच में ये data आ जाता है inflation का. Every month, month on month. Jay, can you talk about Yes, this? sir. Can you talk Yes, about sir. Yes, sir, I am ready. Yeah. So I got this news from Financial Express as well. And speaking about this particularly, we'll first understand the micro level how the Indian EV market is. At micro level, Indian EV market is gaining serious momentum just because of the price dropping in lithium. ये किधर लिखा है? And लिखा किधर है तुमने? लिखा है सर, किधर? lithium price लिखा है सर. But I have only read. I will only read your headings. I am not reading anything else. Right, sir. Okay, sir. कहाँ पे तुम्हारे heading में? हेडिंग में तो नहीं है. See, नीचे डाला. you have to see. Yes, ये ना sir. how Yes, you have sir. to write it. It is not कि खुद Mm-hmm. के लिए नहीं लिखना है. क्योंकि तुमने Okay, ये sir. अच्छा लिखा है. I appreciate कि तुमने किसी को read. But problem is that an experienced guy will not read this. क्योंकि मुझे Okay. तुम तो टाइम पास लिख रहे हो. मुझे क्या पता तुमने अच्छा लिखा है. Or when I scroll on your LinkedIn or maybe in the reports, so I will not read all this. Okay. What will highlight me ना? I will highlight this. Okay, author. क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारा यही पढ़ा अभी भी. Author energy है. तो मुझे कुछ समझा नहीं था. मैं तुम्हारे read ही नहीं करने वाला आगे. Right. Because Right. I assume क्या होता है ना? This is an egoistic thing from experienced guys कि मैं fresher का Okay. क्यों सुनूं? ये होता है. मतलब मैं मेरे experience से बात कर रहा हूँ. Right, sir. I would not be a tutor or mentor. मैं तुम्हारा कभी read ही नहीं करूंगा ये. Right. So whatever you are saying, I said now, whatever you want to talk in the morning calls, it should be there written because I will keep this news in front of me and I will say, okay, let's start. And जो भी तुम बोल रहे हो अगर इसमें लिखा नहीं है तो फिर मैं क्यों ढूंढूं ना ये सब. लेकिन तुम बोर कर रहे हो मुझे. Okay. अच्छा, now try to say your news. Okay, sir. It gained serious momentum because of lithium price had dropped. मैं वो heading add करना चाहिए था आपके हिसाब से. And it is very right. I understand that. And ये भी add करने जैसा point था. There are a lot of schemes given by our government like FAME 1, FAME 2 and FAME 3. इनके phases है अलग अलग, which push for the adoption of EV. And due to this, as a result, two-wheeler EV penetration is expected to cross 15% by FY26. And zooming into the industry level, the electric two-wheeler segment grew over 35% YOY, showing strong demand. And within the space, Ether Energy clearly stood out because of today's news, which specifies that at the company level, Ether reduced its FY25 net losses to 812 crores from 1060 crores YOY, while revenue jumped 29% to 2255 crores. What's more impressive is the gross margin improved from 7% to 19%, and the EBITDA margin turned positive at 23%. 7% to 19%? Yes, sir. Gross margins? Yes, sir. Oops. ये क्यों हुआ इतना? Better scale and cost control. Okay. सर वो एक मेंशन कि लिथियम का जो बैटरी का प्राइस ड्रॉप हुआ ना सर, हाँ. वो जो पीक से इट हैज कम डाउन टू 86%. Okay. Okay. तो उनका मार्जिन हाई हो गया. अच्छा.
So ये last year नहीं बोलते, you say year on year. Okay. Okay, sorry. And they also, because of this, they also cut unit cost of production by 19% and bringing down to 1.2 lakhs. And total sales urged from 42% YOY to 1.55 lakhs units. Largely driven by this new scooter Rizza. अपन को मालूम है Rizza उनका नया मॉडल है just for family purpose. And they have marketed it so well कि उनके sales ज्यादा Rizza से आ रहे हैं अभी. हालांकि उसमें वो एथर 450 एक्सट्रा इंजन है, सब वही है, बस बॉडी फीचर्स अलग है. एंड एथर इज नॉट जस्ट अबाउट व्हीकल एनीमोर. उनका सॉफ्टवेयर जो है उसमें जो देते हैं वो लोग, उसका कंट्रीब्यूशन 6% आ रहा है अभी रेवेन्यू में. Okay. 6%. Oh. Okay. या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा सर. Okay. Okay. या अच्छा, now सही इसमें है सर. मैं now इसमें करोड़ नहीं लिखने हैं. You have to write in either millions or billions. ओके. Not राइट you. सर. हाँ. जैसा वो अभी ध्रुव ने लिखा था, हेडिंग में देयर शुड बी अ पर्सन डेटा पॉइंट्स एंड उसका रीजन. जो भी तुमने ओके सर. मुझे हेडिंग बोला ना कि सर ये पॉइंट्स तो पता होने चाहिए, जो भी तुमने बोला दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर हेडिंग. राइट. जो भी तुमने बोला वही, तुम जो बात कर रहे हो अच्छे से बात कर रहे हो, बट लिखते टाइम तुम गलती कर रहे हो. बिकॉज समझ लो ये तुम नहीं पढ़ने वाले हो. दिस यू टू मेक अदर पीपल रीड. यस सर. बट हाँ, वो सारे कॉस्मेटिक है कि यू शुड टॉक अबाउट करोड़ में होने चाहिए, अच्छा बिलियंस में होने चाहिए, मिलियंस या बिलियंस में. अगर यूनिट्स के लिखते हैं तो थाउजेंड्स या मिलियंस. जैसा अभी ध्रुव ने 0.25 मिलियन लिखा था, इट शुड बी 250,000 ऐसा. राइट राइट सर. 250K. सर और आपने बोला कि स्पेसिफिकली जो डेटा पॉइंट मैंने पॉइंट्स मेंशन करे कि लिथियम प्राइसेस एंड ऑल, वो हेडिंग होने चाहिए. राइट सर. क्योंकि तुम जो बोल रहे हो ना वो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए हाँ. एग्जैक्टली, एंड दैट शुड बी पिन पॉइंटेड. यस सर. मतलब ऐसे हम हाईलाइट, ये तुम नहीं बात करोगे ना सर, आई विल टॉक योर हाइलाइट्स Q4 FY25 हाइलाइट्स ग्रोथ ऑन ट्रैक्स, ऐसा हम बात नहीं राइट राइट सर. करते. जो बात करते हैं वो लिखो. राइट सर. क्योंकि यस सर. जब तुम बात करोगे ना, आई विल लुक एट योर पॉइंटर्स कि तुमने कहाँ पे क्या लिखा है. ओके. राइट सर. वापस लिखो. थैंक यू वापस सर. मुझे यस वापस सर. भेजो. डालूंगा. यस सर. बेस्ट. ओके. यस. अच्छा गाइस, एनीवन ऑन द स्विगी, किसी ने पढ़ा गया स्विगी का? कल न्यू स्विगी हैज कम अप विथ a result. Anyone? So this is the news. Swiggy has, if you read this news, the result was quite good. Probably what excited me was the operating profit was 210 crores. That, quite a good growth, and its gross merchandise value has increased, grew 17.6%. Now, good or bad? If I ask you, good or bad? Gross merchandise value means the margins, okay? Not margins, I will say the value of its commission. Commission increase 17.6%. Good or bad? सर गुड, क्योंकि मर्चेंडाइजेस मतलब उनके टाइप्स ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं. हाँ वही, मतलब सेल्स ज्यादा हुए हैं, इस पे कमीशन. हाँ, सेल्स ज्यादा हो गए, कमीशन ज्यादा आ रहे हैं उनका. No, if you have to compare this with Zomato, अगर Zomato का भी इतने से ग्रो हुआ है या इससे कम हुआ है या इससे ज्यादा हुआ है तो दिस इज अ बैड साइन. वो बोलते हैं भले ही यहाँ पे बोला क्विक कॉमर्स डबल्ड by higher monthly transactions. Right, sir. But the margins dipped. This is now, Swiggy and Zomato are straight away competition. Means दोनों के products भी same है, दोनों के offerings भी same है, services भी same है. So if you are attacking Swiggy, you should know everything about Zomato. And that's a good analysis to do. And this analysis, why we don't do this analysis for tracking, because if you go and talk about Zomato and Swiggy in the interviews, you will be screwed up. Because it's a startup companies. With this analysis, you talk about the FMCG and the hotel industry. Blinkit and Swiggy, Instamart, because those are specifically into FMCGs. So the reason of tracking these companies is not to track this sector, e-commerce sector. We have to track the FMCG sector.
That is why this analysis is very important, because we are talking about, quick commerce growing everywhere. HUL talking about quick commerce, Tata Consumers talking about quick commerce. Everyone is going into specifically Tata Consumers has a higher share coming from quick commerce, 15%. So we have to talk about, why I have to read this result is because to track those companies. So now they are saying that the quick commerce expects break. This is 3 to 5. This is fine. Now there are seen many things over here. Better average order value, take rates, that is called commission, then gross merchandise value. These are new words which comes up. Okay, that you need to know which are these words. See, पता होना चाहिए, general knowledge. That is why you have to read newspapers. In a basis point, BPS मैंने बोला है तुमको, but since if you read this paper before coming to the sessions and before coming to this classes, basis point, that is called BPS. Because when you talk in percentage, you don't talk in percentage terms. So तुमने Jay, when you said ना it increased Yes, from sir. 7% to 19%, तो ऐसा नहीं बोलते, you always talk on basis point. Basis points. But अभी Right, इतना sir. बड़ा amount था तो ठीक है, वो basis point में नहीं आएगा. This is an हाँ, sir. uncommon thing that happens कि 7 से इतना percent किसी का बढ़ता नहीं usually. And now say they have also given a midterm guidance, 18 to 20%. In midterm, the food delivery growth guidance. The food delivery growth guidance is 18 to 22%. And they have stopped, they have stopped that Swiggy Genie. If you know. Yes, sir. They have stopped it. Overall cash burn. See now again a word, cash burn, including capex. Cash burn is an expense usually. Lower store capex, improving store economics. Now they are stopped. We were talking about increasing dark stores. Now they are talking about improving stores economics. There may be a shift in marketing spend towards consumer retention versus acquisition. Now I will say they are, इससे ना क्या पता चलता है from this segment, from this statement, the growth is now at the peak. Okay. Now they will focus on efficiency. क्योंकि बहुत सारे losses कर लिए. ना ये Zomato के साथ भी ऐसा हुआ था. They started, cash burning and then they stopped. कि अभी हम acquisition नहीं करेंगे. We will talk about economy of scale, or maybe increasing our margins. So this is what they're talking about, Swiggy. Have a look at this company as well from your FMCG point of view. Harshit was saying FMCG sales increasing via modern trade, but in traditional trade FMCG sales. Yes, we are talking about this. FMCG is going down. So they have done that changes in their portfolio. So the small item like 10 rupees, 20 rupees you will get in the Kirana stores, but you will not get on the e-commerce. If you have observed that, now go to DMart sometime. Small products are not available. Have you observed, guys? 4 रुपए 10 रुपए वाले प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे अभी. 5-10 रुपीज वाले प्रोडक्ट्स डीमार्ट में. जस्ट ऑब्जर्व गए होंगे तो. दैट डे मैं ऐसे गया था, मुझे एक ही चीज चाहिए थे. आई थिंक आई वांटेड सम सॉस, तो छोटा ही चाहिए था मुझे. जस्ट वो ना पिचकू जो आता है किसान का, आई डिडंट फाइंड इन डीमार्ट. वो बड़ा ही था उसके पास. आई वांटेड टू हैव अ बिस्किट. वो इफ यू रिमेम्बर वो बॉबन के 10 रुपए के पैक्स आते हैं छोटे वाले. हाँ, सर. छोटे देखो आते डीमार्ट में सर. नहीं मिलते आजकल. नहीं मिलेगा सर, उसका फैमिली पैक ही मिल रहा है आजकल वहाँ पे. तो यू आर वो नॉट भी बल्क में रखा है. राइट. भी नहीं मिल रहा है ये. हम्म. हाँ, ये ऑब्जर्वेशन है हर्षित. सो वी आर डूइंग दिस रिसर्च फ्रॉम लास्ट 3-4 months. तो एक न्यूज था यहाँ पे. Anjal, it is not they try to sell big quantity at lower price. The companies, because of this problem now, that Kirana stores, traditional stores and modern stores and the e-commerce, because if you get everything on e-commerce, probably you will not go to a modern trade or maybe Kirana stores. अभी डीमार्ट को तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो किराना स्टोर को फर्क पड़ेगा. यस सर. आपने सर कोलगेट का देखा था क्या न्यूज? क्या? नहीं. नहीं, मैंने न्यूज लाइक लिंक्डइन पे डाला था 4-5 दिन पहले कि जो कोलगेट कंपनी है वो क्विक कॉमर्स पे लाइक बहुत एग्रेसिवली डिस्काउंट प्राइस पे दे रही थी.
तो जो एसोसिएशन लाइक जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, जो हम्म। एसोसिएशन जो बना था, तो उन्होंने महाराष्ट्र से लाइक कोलगेट लेना ही बंद कर दिया। लाइक जो कोलगेट आती है, जो कोलगेट की जितने भी ब्रांड्स है, पाउडर है या फिर पेस्ट है, ये सब, तो महाराष्ट्र में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन्होंने लाइक बंद कर दिया है अभी, तो उससे सेल्स इम्पैक्ट हो सकता है। क्यों बंद किया? हाँ, उन्होंने बोला कि उन्होंने लाइक मीटिंग रखा था, जो भी कंपनीज है जो डिस्काउंटेड प्राइस पे क्विक कॉमर्स बिजनेसेस को जो बेच रही है, डीमार्ट हो गया ऑफलाइन में, ऑनलाइन में स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, तो इस पे सर आप अगर जाओगे ना तो कोलगेट का जो प्राइस है, अगर किराना स्टोर से देखोगे तो बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे है। और अदर प्रोडक्ट्स भी हैं, तो उनके साथ मीटिंग था, तो कुछ कंपनीज आए थे उनके मीटिंग में, कुछ नहीं, तो जो नहीं आए उन पे एक्शन लिया गया था, तो पहला कोलगेट ही था। अच्छा। यस सर। वो मैंने डाला था कि उस पे सेल्स पे इम्पैक्ट होगा वॉल्यूम में, और अदर जो कॉम्पिटिटर इसके उसमें थोड़ा ग्रोथ है। और सर क्विक कॉमर्स में अगर देखोगे ना अभी मुंबई में, तो वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि इन्होंने इवनिंग से लेके रात तक लाइक पूरा बंद कर दिया है। सर्ज होता है इतना ज्यादा डिमांड, तो वो ले नहीं रहे ऑर्डर, ऑर्डर ही बंद कर दिया। ओके। यस। Okay. Harshit, what are you trying to say? I didn't get you. Can you speak? Harshit? हेलो Yeah, Harshit. सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अपन अगर ट्रेडिशनल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड को कंपेयर करते हैं ना, हाँ। तो अपन यही देखेंगे कि ट्रेडिशनल ट्रेड हमेशा प्रॉफिटेबल है अपने कंज्यूमर्स के लिए। Okay. जैसे अपन लाइक एग्जांपल सबने देखा होगा कि क्लिनिक प्लस का शैशे का पाउच आता है हाँ। ₹1 वाला। तो हाँ। उसमें क्वांटिटी आती है अपनी 8 ml। हाँ। और जो क्लिनिक प्लस का 1 लीटर का बॉटल आता है वो आता है 890 MRP का। तो Okay. मॉडर्न ट्रेड उसको 50% ऑफ डिस्काउंट करके उसको 490 समथिंग में बेच रहा है। हाँ। 1 लीटर अपने को पड़ रहा है ₹490 में, मतलब 1 ml 10 ml की कॉस्ट हो गई 4.90, Correct. हाँ। है ना। और अपन उसी की जगह अगर अपन ट्रेडिशनल रेट से ₹1 वाला पाउच लेते हैं तो ₹1 वाले में 8 ml आता है। तो अपन ₹120 में एक पूरा 1 लीटर शैम्पू ले सकते हैं। बट वो अपन पढ़ते नहीं है। हाँ। करेक्ट। करेक्ट, ये तो है ही नहीं, क्या हो रहा है, ये तो करेक्ट। सी स्मॉल सैचेज में हमेशा ज्यादा पैसा बनता है कंपेयर टू लार्ज पे सैचे। हम्म। ऐसा है। तो क्या हो रहा है ना, अभी ये हम न्यूज काफी टाइम से पढ़ रहे थे। सो किराना स्टोर्स वालों ने ना कंप्लेन किया था फॉर वो इंडस्ट्री में, दैट बिकॉज ऑफ क्विक कॉमर्स ना, लोग वहां से ले नहीं रहे। देखो अभी कैसा हाँ है, सर। स्विगी एंड इंस्टामार्ट तो ऐसा है ना कि उनको तो खर्च कैश बर्न ही करना है। उनको फिर तो ₹1 के भी बेचेंगे और वो ₹400 के भी उनके पोर्टल से बेचेंगे। तो प्रोबेबली व्हाई वुड यू गो टू अ किराना स्टोर और व्हाई वुड यू गो टू अ डीमार्ट? हाँ सर, वो भी है। मतलब हमारा खुद का एक ग्रोसरी स्टोर है। हाँ। सो अभी जैसे वॉर का सिचुएशन आया, हाँ। तो जो पीपल डीमार्ट वगैरह जाते थे दे आर कमिंग वापस, कि वो वापस आ रहे हैं हमारे पास कि भाई सामान दे दो, कोई अर्जेंसी हो जाती है। हाँ। किराना स्टोर सर एक मेजर रोल प्ले करता है। जो करेक्ट। करेक्ट। अपन डीमार्ट, अपन अगर प्रॉफिटेबिलिटी में जाते हैं तब भी अपना ट्रेडिशनल ट्रेड में ज्यादा फायदा है, करेक्ट, वो है लेकिन ना, वो तो है ही। या इफ यू तुम ना पीपल एक आर। HUL का ना कॉन्फ्रेंस कॉल करो लास्ट 4 क्वार्टर्स के, तुमको समझ में आएगा वो क्या बता रहा है ट्रेडिशनल और इसके बारे में। वो उसका अभी भी 70% ऑफ द ट्रेड कम्स फ्रॉम ट्रेडिशनल। वो क्विक कॉमर्स में जा ही नहीं रहा है। हाँ हाँ सर, वही है। जैसे क्या बोलते हैं, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको हम्म। कि अपने को चीज अच्छी और अच्छी कहाँ पे मिल सकती है। जैसे अपन, हमारे पास HUL का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हाँ। सो वैसलीन का एक लोशन आता है ₹435 का, येलो वाला, 400 ml। ओके। सो हमको वो मार्जिन देता है 12% का। ओके। ओके, मतलब हमारे को पड़ता है ₹385 का। हाँ। लेकिन अगर आप वही डी मार्ट में जाके ले लेंगे तो वो शायद आपको ₹250 में दे देगा। ओके। तो अपन एक, अगर सोच सके तो इतना डिफरेंस तो कभी नहीं आ सकता कंपनी के रेट में और इतना। हाँ। बट व्हेन यू यूज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेड एंड मॉडर्न ट्रेड, तो आपको डिफरेंस देख लेंगे कि भाई कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही है, और एक रियल प्रोडक्ट है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ एक सर, ही बिल्कुल होता है। एक ही कंपनी के दो अलग अलग प्रोडक्ट बिकते हैं? ट्रेडिशनल ट्रेड के लिए माल अलग बनता है और सर मॉडर्न ट्रेड के लिए माल अलग बनता है। और MRP भी अलग होती है और वेट भी अलग होता है। हाँ, हो सकता सर है। ये तो फिर क्वालिटी चेक का ये हो गया नहीं हाँ, नहीं, वही मतलब पता ये इश्यू। नहीं सर, कितना ये कोई इसका प्रूफ नहीं प्रूफ है। है क्या, लाइक ऐसा इसको होता है? इसको कोई प्रूफ नहीं है प्रूव करने को।
हो सकता सर है, इट्स इंडिया, एनीथिंग कैन हैपन। सर हो सकता है, लाइक प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आता है, लाइक अगर एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, लाइक टी अगर ले लो आप, हाँ, तो अगर टाटा का ही है तो अलग अलग होते हैं उसके ब्रांडिंग, लाइक टी में ही, नहीं बट नहीं, वो बोल मैन्युफैक्चर रहा है नहीं कि एक देखा। ही प्रोडक्ट, मतलब लेट्स से मैं क्लिनिक प्लस किराना स्टोर से लूँ और क्लिनिक प्लस डीमार्ट से लूँ, बोलते दोनों अलग अलग क्वालिटी होगी। श्योर सर, बिल्कुल होगी वो तो। मतलब बोल रहा है, मतलब हो सकता है, यू नेवर, आई कैन नॉट डिसएग्री ऑन दैट, हो सकता है। सर उनका बस मतलब मैंने पढ़ा है कि उनका डिस्काउंटेड इसके लिए होता है क्योंकि वो बल्क में लेते हैं, और कुछ ऐसा रीजन नहीं है। नहीं नहीं, ये होता है क्योंकि मैंने भी नोटिस किया था, व्हेन आई गो टू इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, वो विजय सेल्स और ये लोग इतना सस्ते में कैसे देते हैं, जबकि ना नॉर्मल स्टोर महंगा देता है। तो विजय सेल्स वाले बोलने के कि ना हम हमारे लिए अलग से कंपनी बनाती है, सब बोलने की वो लोग। हम्म, तो ठीक है, मतलब हो सकता है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। बट वही है ना, इंडियंस आर क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता इंडियंस को ना, वरना मारुति कभी बिकती नहीं इंडिया में अगर क्वालिटी का मैटर होता तो। यस सर, प्राइस। वो है। सर सर, आप गोल्ड। इंडियन कस्टमर को कभी जो कैश बंद कर रहे हैं अभी जेप्टो, जयपुर में आया है जेप्टो, तो वो सबको 125 रुपीज कैशबैक दे रहा है हर ऑर्डर पे। अच्छा, तो हाँ, इट्स लाइक सर, वो तो वीपीज का कैश बंद करना हो गया। अभी एक लोग क्या कर रहे हैं, किराना स्टोर को खत्म कर रहे हैं बिल्कुल ही। करेक्ट, बट हाँ। एक पीक पॉइंट पे आके हमें ये रियलाइज होगा कि हमें ही वापस से लूटा जा रहा है व्हेन वी आर एडिक्टेड टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, करेक्ट करेक्ट, नहीं ये तो स्पेसिफिकली मतलब रूरल में भी तो जा रहा है, अर्बन में तो था ही। यस सर, हम्म। वो एक्सपेंड कर रहे टायर 2 टायर 3 सिटीज में बहुत करेक्ट, एग्रेसिव। हो सकता है। इसका ट्रेडिशनल इज इनटू प्रॉब्लम, तो वही सब ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं ना, यानी स्विगी जोमेटो पे जितना ग्रोथ होगा ना, उतना ही फिर ऐसा होता है कि इफ यू डोंट पुट ऑन ई कॉमर्स, तो एचयूएल विल से आई एम लूजिंग ऑन द मार्केट, या ना टाटा कंज्यूमर विल से, टाटा का तो 15% हो गया है, एचयूएल का फिर भी 7% पे ही है अभी तक। ओके, परम, एनीथिंग ऑन योर एशियन पेंट्स, कहाँ पे था ये न्यूज एशियन पेंट्स का, परम? Actually, I think, sir, yeah. Hello, या, sir, and good day, everyone. Just give me a moment. Yeah, actually, I think it was in the Mint paper. ओके, व्हाट वाज इट? Yeah, so basically, they are continuously losing the market shares. So basically, if we talk, uh, like other peers like Grasim Industries, Burger, and Exo showing a better future outlook, and the small players are showing above normal uh, growth compared to industry peers. The main reason for it was that construction's slowdown, delay in repainting, and weakness in the business to business segment. Also, demand in urban areas continued to be soft, and there was a down trading to lower price paints, like basically the small players coming into the play. Its growth is only single digit, with the stock down year to date 15%. And now the company is planning to raise selling expenses such as advertisements, trade incentives. So particularly, it will require a detailed attention to the stock. But most of the analysts are uncertain about that. But given the financial year 26 outlook, it doesn't look good for Asian Paints. They still will try to aim for a double-digit growth, but it seems difficult. ओके, And their year-on-year profit was down like 33%. स्टॉक इज डाउन And 15% year to date, okay. yeah, and also their revenue dropped 4.5% on the year. Okay, Param, you also have written in crores, it should be in billions. Yes, sir, I will correct that. वो लाख करोड़ नहीं बोलते हम ऐसा, मतलब when you talk in, from the international point of view, or maybe uh, this is because this is global, na, this news is global, everyone, all of the world invest. So if say if I am in sitting in US and reading your news, I will not understand what is lakh crore. That's true, sir. I was writing more of a more point of view from an Indian market, but I'll correct that. Okay, fine. सर ये न्यूज न्यूज Also, में एक और कंपटीटर भी आ गया है। मैंने एक न्यूज लेटर लिखा था एक 2 दिन पहले। पेडिलाइट भी इसमें आ रहा है, इस इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में। उनका ब्रांड हाइशा जो है पेंट इंडस्ट्री में, Okay, दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड इट।
आई एम नॉट श्योर वो पेंट का ना, मतलब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि क्या फर्क होता है, हम्म बिकॉज आई एम नॉट इनटू, मेरे को घर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पेंटिंग एंड ऑल इसमें। बट हाँ, हाँ दिस इज व्हाट वी यूज, डैड को है। राइट बट पता नहीं कौन से पेंट्स होते हैं नाउ डेज, वॉलपेपर ज्यादा यूज होते हैं। पेंट्स तो अभी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, घर पे कम होने लग गए। बिकॉज इन माई हाउस माई डैड हैज चेंज द एंटायर हाउस टू वॉलपेपर। पेंट्स का कुछ झंझट ही नहीं है, एक ही बार सिर्फ पेंट करते हैं, दैट इज सिर्फ सीलिंग को। हम्म आई एम नॉट श्योर कि क्या है पेंट्स इंडस्ट्री में वो वॉल के लिए भी स्पेशल पेंट आ गया है सर। हाँ मतलब करेक्ट। हाँ, अगर तुम वॉलपेपर लगा रहे हो तो उसका तो वो ट्रेस नहीं रहेगा, अगर तुम यूज कर रहे हो तो उसको पेंट करेक्ट को। करेक्ट। बट Yes, पेंट्स sir, में it और was एक also प्रॉब्लम होता है। mentioned that home decorative is going down for Asian Paint as well. So, या करेक्ट, होम हम्म डेकोरेटिव इज गोइंग डाउन बिकॉज वो काफी चेंज, मतलब आई हैव सीन ना, मतलब मेरे घर पे देयर वाज अ लीकेज प्रॉब्लम। सो हमने पेंट लगाना ही छोड़ दिया, तो वी यूज दैट आइदर द वॉलपेपर, और अभी कुछ शीट्स आए नए। एंड पेंटिंग में क्या होता है ना, इफ यू वांट टू पेंट योर हाउस, रीपेंट योर हाउस, द प्रॉब्लम इज एवरीथिंग इन योर हाउस शुड बी कवर्ड, या फिर वो खराब हो जाते हैं। हम्म वो पेंट के स्मेल से ना यू माइट गेट सम काइंड ऑफ एलर्जीज, और वो सब तो मुझे बहुत होता है। हम्म तो हमने तो पूरा चेंज ही कर दिया है, इट्स लाइक दैट। कभी भी होता है तो आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने मेरे घर को लास्ट कब पेंट किया था, अपार्ट फ्रॉम द सीलिंग। द होम डेकोरेटिव इज एक्चुअली गोइंग डाउन। it's a big task, yeah. ओके, गौरव, व्हाट इज ऑन योर ईवीज? Yes, sir. ना गौरव। Sir, it's about the EV push from government. The Ministry of Heavy Industries may soon announce a new EV-focused PLI 2.0 scheme aimed at Tier 2 and Tier 3 city penetration. Talks are ongoing about further FAME initiatives for two-wheeler and LCVs. स्लो स्लो The स्लो main गौरव, reason, स्लो स्लो। okay, like the main reason for behind the India's EV push are mainly two to three: reducing oil imports, urban air quality crisis, Atmanirbhar Bharat and Make in India initiatives, and also boosting manufacturing and exports. This all. वन सेकेंड ना, योर न्यूज गौरव, तुमने जो बोला, Yes, अच्छा sir. इन दिस, सी, तुमने जो भी बोला मुझे एक भी चीज दिखी नहीं यहाँ पे, जो तुमने वे में बोला। सी योर हेडिंग्स, अगर मैं तुम्हारा सिर्फ इतना हेडिंग छोड़, रिड्यूसिंग ऑयल इंपोर्ट्स, मुझे Yes, sir. इसमें रिड्यूसिंग ऑयल इंपोर्ट, अर्बन एयर क्वालिटी, आत्मनिर्भर भारत, देर इज नो डेटा पॉइंट्स। क्यों हो रहा है रिड्यूसिंग ऑयल इंपोर्ट्स, क्यों हो रहा है? वो सब फर्स्ट में आना चाहिए ना, व्हाई आर यू मेकिंग दिस बिग? मैंने Yes, क्या sir. बोला, योर हेडिंग्स। सी मैं तुम्हारा जब हेडिंग पढ़ने वाला हूँ रिड्यूसिंग ऑयल इंपोर्ट्स, मुझे कुछ समझा नहीं इसमें तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे कुछ सेंस भी नहीं समझ, मैं तुम्हारा ये भी नहीं पढ़ने वाला। ईवी पुश फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या समझ रहा है मुझे इसमें? Okay, sir. तुम बात उसको करते, थोड़ा लंबा, मतलब थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड एक लाइन बताना तो होना पड़ेगा. चाहिए तुम्हारा हेडिंग कंपलसरी, 1 to 1.5 लाइन, और 2 3 4 लाइन का भी हेडिंग नहीं होता है। हेडिंग शुड बी 1 लाइन, तो मुझे समझना चाहिए कि तुम बात किस पे कर रहे हो। Yes, sir. ईवी पुश फ्रॉम गवर्नमेंट क्यों किया है? टू फोकस ऑन, क्या है, न्यू ईवी फोकस, मिनिस्टर हैव सून अनाउंस एन ईवी। हाँ, तो गवर्नमेंट टू अनाउंस एन क्या पीएलआई स्कीम फॉर Tier 2 Tier 3 सिटीज। एंड फिर इसका कुछ है क्या तुम्हारे पास? पेनिट्रेशन, अभी किसी ने बोला था पेनिट्रेशन ईवीज का, अथर का 15% है यस ओवरऑल सर। रेगुलर पेनिट्रेशन, तो वो लिखो ना यहाँ पे। बिकॉज अगर डेटा नहीं है Yes, sir. तुम्हारे इसमें है, तो ये तुम्हारा न्यूज सिर्फ एक स्टोरी हो गया, एंड वो स्टोरी मैं तुम्हारा से क्यों सुनूं? ऐसी बात हुई। एक मैं फ्रेशर से Yes, sir. स्टोरी, Yes. मुझे पता है तुम गलत ही बोलोगे, या मैं अज्यूम करूंगा कि तुम गलत ही बोलोगे, क्योंकि इसमें इसमें कुछ मैं मेरे मॉडल्स में चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ कुछ चेंज करूँ? No, sir. ओके, तो मेक श्योर हो ना, वो हेडिंग से होना चाहिए। हेडिंग शुड बी प्रॉपर, कि इतना प्रिसाइज हेडिंग होना चाहिए कि
हेडिंग एंड डेटा पॉइंट्स, हेडिंग डेटा पॉइंट्स, सॉरी, थियरी और डेटा पॉइंट्स, थियरी डेटा पॉइंट्स, दैट्स इट। फिर तुम यहाँ पे कुछ भी यस सर। लिखो, तुम्हारा मैं पढ़ने वाला हो ही नहीं। एंड उसमें भी तुम्हारे हेडिंग पॉइंटर होने चाहिए कि क्या लिख रहा है, कहाँ पे लिखा है, क्या हाईलाइट किया। यहाँ पे नथिंग इज हाईलाइटेड, यू नो, यू आर वेस्टिंग माई टाइम रीडिंग दिस। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट नो एक्सपीरियंस गाय विल से कि तुम तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब लिख के। यस सर। ओके, फाइन। तुमने बीच में तो अच्छा लिख रहा था, अभी क्या हो गया अचानक से? हेडिंग क्यों लिखा है इसका? पता और नहीं सर, आज ढंग का न्यूज नहीं मिल रहा था मेरे हाँ, तो को, ये ये मिला न्यूज गलत है तो। फिर तुम्हारा, ऐसा है, न्यूज ही तुमने गलत चूज किया है। हाँ वही 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 मैं सर। तो, हाँ, फाइन। हाँ अंजल, नहीं, कॉल इस पे डिस्कशन नहीं हुआ है ब्लू स्टार पे। सर तो मैं डिस्कस करूँ क्या उसका? हाँ करो हम। सर जो पिछले बार का जो हमारा कॉन कॉल था ब्लू स्टार का, तो उसमें कंपनी ने बोला था कि लाइक 20 to 25% का ग्रोथ वो शो करेंगे। और इस बार के जो मैनेजमेंट कॉल है, जो रिजल्ट है, तो ये लाइन है जैसा उन्होंने बोला था। तो इंडस्ट्री का जो डेटा आया है वो है 15 से 20% ग्रो हुआ है। बट ब्लू स्टार ईयर ऑन ईयर आप देखो तो 24% का ग्रोथ है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर 21% का। और इसमें इन्होंने 1% मार्केट शेयर भी गेन किया है एसी सेगमेंट में। और सर प्लस जो लाइक मार्केट लीडरशिप है कमर्शियल एसी में, वो सर अभी भी है। और कमर्शियल रेफ्रिजरेटर जो हम लाइक काफी समय से बात करते आ रहे हैं, क्विक कॉमर्स में जो यूज हो रहा है लाइक डार्क स्टोर्स वगैरह में, तो उसमें ग्रोथ है। लाइक मार्केट लीडरशिप अभी भी है, 30% वो मार्केट पूरा होल्ड करते हैं। लेकिन वो अभी टारगेट करे 33%, लाइक 3% और गेन करने का 300 बेसिस। सर एक चीज इसमें नोट करना है कि जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर है या फिर एसी, तो इसमें जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो क्विक कॉमर्स डार्क स्टोर से आएगा, उसका भी डेटा नहीं उन्होंने शो किया। लाइक उन्होंने बोला कि जो मेजर इम्पैक्ट आया है वो हॉस्पिटल, हेल्थ केयर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आया है। तो अभी भी जो हम जो एस्टिमेट कर रहे थे डार्क स्टोर्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है, डबल हो रहा है क्विक हाँ, कॉमर्स में, वो अभी भी बाकी है आना। तो उसमें सर वॉल्यूम लाइक अभी भी वो है। तो अगर आप पूरा अगर ब्लू स्टार का देखो इंडस्ट्री में क्या हम्म, कंट्रीब्यूशन है, तो पिछले क्वार्टर में उनका 13% था, वो टारगेट कर रहे थे 14%। बट उन्होंने अभी जो टारगेट है वो बढ़ाया 15% पे। तो लाइक अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसमें सर एक और चीज मेंशन है कि जो अभी अप्रैल का जो महीना था जिसमें लाइक रेनफॉल हुआ, तो हम्म, उसमें उनका भी लाइक इम्पैक्ट हुआ है सेल्स। बट एक सर डेटा है कि अप्रैल से लेके जून तक ये सर हाफ कंट्रीब्यूट करता है, जो एसी है, कमर्शियल एसी है, रेफ्रिजरेटर है, या फिर जो भी मतलब कूलिंग प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज उसमें। तो सर अभी वो बोल रहे हैं ऐसा कि मई और जून एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रांग समर होगा। बट अभी ऐसा तो लग नहीं रहा है। मई तो भी आधा मतलब खत्म होने आया है, लेकिन रेनफॉल्स हो ही रहे हैं अभी ज्यादातर जगह पे। हम्म, तो जून देखते हैं सर क्या होता है। उन्होंने बोला है कि जो रेन है समर में अगर वो कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द सीजन, तो ये हम्म, बिग कंसर्न है। सारी मतलब जो कूलिंग जो प्रोडक्ट जो बेचते हैं सर्विसेज, वो चाहे ब्लू स्टार हो, वोल्टास हो, हिटैची हो, सबको मतलब इशू है उसमें। क्योंकि इन्वेंट्री तो मतलब पाइल अप हो चुके हैं। और जिन्होंने भी लाइक रिटेल पे लिया है इन प्रोडक्ट को, वो अभी लाइक रुके हुए हैं देखने के लिए कि लाइक सीजन कैसा है, उसके हिसाब से वो और लाइक डिमांड करेंगे प्रोडक्ट का। सर इसमें अ, एक इन्होंने लाइक पार्टनरशिप किया था हिंडाल्को के साथ 26 मार्च को। तो okay, उसमें उन्होंने बोला है कि लाइक वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो हमने पढ़ा था कि जो लाइसेंस है एयर कंप्रेसर का, ये सब, तो इसमें सर कुछ छूट मिली थी। तो इन्होंने इंडिया से टाई अप किया है रादर देन कि जो चाइना पे डिपेंडेंस थे उसको कम करने के लिए। तो इसमें क्या है, इनका कॉस्ट भी कम होगा, उन्होंने ऐसा मेंशन किया है। ओके, और हाँ, बुक ऑर्डर वैल्यू भी ऑल टाइम हाई है 6,263 करोड़ का, जो पिछले साल 5,500 करोड़ का था।
तो सर ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है। वो ग्रोथ लाइक एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं, मतलब लगता है अचीव होगा, क्योंकि अ, उन्होंने बोला है कि वो फोकस कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे भी। और एक मेजर चीज है कि जो हम अभी किराना स्टोर्स का बात कर रहे थे, हम्म। तो अभी अगर गांव में भी अगर किराना स्टोर खुलता है तो उनको भी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम्स वगैरह बेचना है, चाहे वो टायर 3 टायर 4 टाउन्स हो या फिर विलेजेस हो। तो जो कमर्शियल जो रेफ्रिजरेटर है उधर भी यूज होगा। और फ्रोजन फूड है, हेल्थ केयर है, मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है, तो उसमें भी लाइक काफी डिमांड आ रहे हैं। तो ये मतलब ओवरऑल पॉजिटिव है, और मतलब ठीक है ओवरऑल अगर देखें तो ऐसा। नहीं, बट इसके बाद तुमने वोल्टास का सुना एनुअल कॉन्फ्रेंस कॉल? हाँ सर, वोल्टास का भी सुना, वोल्टास का भी सुना। वोल्टास क्या बोला? ये जो वेदर फोरकास्ट जो मेजर जो लाइक जो मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सेम उनका भी स्टेटमेंट यही था कि अगर थ्रू आउट द समर हुआ तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा लो है वॉल्यूम सेल्स का। और उनका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जैसा मैंने पहले बोला था, उनका एक चेन्नई में उनका एक प्लांट है, हम्म। तो उससे उनको लाइक काफी हेल्प हो रहा है कॉस्ट कटिंग करने में। और सर मैं मार्जिन वगैरह डिस्कस करूंगा आपको, मतलब मैं भेजूंगा, तो मैं देख रहा हूँ अभी, बना रहा हूँ उसको। तो अंजल, हमने वो कॉन्फ्रेंस कॉल्स के रिपोर्ट्स किए हैं लास्ट दो यस। वीक में हो गए हैं। हाँ। तो वैसे ही तुमको लिखना है, क्योंकि वोल्टास और ब्लू स्टार, हम्म। अगर तुम इंडस्ट्री फॉलो करे तो ये दोनों के रिपोर्ट हमारे पास होने ही चाहिए, एंड इट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेटेड वे। क्योंकि जब कोई पूछे तुमको, तो तुमको याद कर करके बात करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्या यस। हुआ है। जैसे यस। तुम आज बोल रहे हो मार्जिन नहीं बताया या ना आधी चीजें नहीं बताया, तो तुम्हारा इतना 1 मिनट तक यू शुड हैव ए स्टॉक पिच कि सर कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या हुआ है ना आगे क्या होगा, विथ योर इंडस्ट्री नॉलेज एज वेल। यस तो सर। वो टाइम लगता है बनाने को। हम्म। तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल, एंड क्या होता है व्हेन यू मेक इट एंड व्हेन यू सेंड इट टू नो तुम्हारे इंटरव्यूज को सेंड करते हो या रिक्रूटर को, तो उसको समझता है कि अरे इसको सिर्फ ये इंटरव्यू दे नहीं रहा है, इसने सच में समझा है वो चीज, इसको ये प्रेजेंट करने भी आती है, कि जब क्लाइंट फेसिंग रोल होगा तो ये प्रेजेंट भी कर पाएगा। यस सर। तुमको आता है, आई एग्री कि तुमको ये सब पता है, बट इसका प्रूफ क्या तुमको पता है? अगर मैं तुमको कहाँ पे रेफर करूँ, मैं बोलूंगा मेरे स्टूडेंट को ना ब्लू स्टार और इसके बारे में पता है, प्रूफ क्या है उसका? यस सर, ऐसे मैं नहीं होगा ना करता कि हूँ। यार इसको इंटरव्यू को बुलाओ फिर नहीं मैं नहीं। देखूंगा, देखो ये प्रूफ है, उसने ये सब लिखा है। तो शायद से क्या होता है ना कि तुम रिपोर्ट्स में और 10 चीजें और ऐड ऐड करते हो जो तुम शायद से बता नहीं पाओगे, बिकॉज 1 मिनट में ज्यादा चीजें नहीं बता सकते। हम्म। बट रिपोर्ट पढ़ के समझ में आएगा ना कि तुमने क्या क्या बताया। तो इसके लिए जरूर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक तुम रिपोर्ट नहीं लिखते ना, वरना इंटरव्यू इजी हो जाएंगे क्रैक करने को। वरना वही प्रॉब्लम होगा कि वो आएंगे जज करेंगे, फिर तुम दो चीज भूल जाओगे उसमें बात करते करते। यस। तो ब्लू स्टार, वोल्टास, और कौन है, हिताची, इसके भी रिजल्ट्स आए। यस और कौन है उसमें, एम्बर है जो बनाता है, डिक्सन बनाता है। तो वो सर। सब की तुम्हारे पास होनी चाहिए कॉन्फ्रेंस कॉल रिपोर्ट्स, तभी तुम जाके एक कंपनी पिच कर पाओगे। बरोबर। एंड कैसा होता है इंटरव्यूज में, उनको एक भी चीजें नहीं देनी, जो है देनी होती है कि तुमको काउंटर काउंटर करे वो, यस। कि वो काउंटर तो करने वाले, क्योंकि ये इंटरव्यू का प्रोसेस होता है कि तुम जो भी बोलोगे मैं उसको काउंटर करूंगा। कि यस आई सर। विल अज्यूम कि तुम जो बोल रहे हो तुमको कुछ पता नहीं है, तुम ऐसे ही मुंह उठा के आए हो इंटरव्यू को। ये एक इंटरव्यूअर का माइंडसेट होता है कि बरोबर। आज मैं तुझे, कैसा होता है ना, इफ आई वांट टू जज समवन, लेट्स से इफ आई रेफर, ठीक है, यू आर गोइंग टू एन इंटरव्यू जहाँ पे CFA रिक्वायर्ड है, ठीक है, या 1 2 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मैं तुमको वहां पे रेफर कर रहा हूँ कि मेरा स्टूडेंट है इसको, तो ही विल एक्सपेक्ट कि यार इसको क्या आता होगा, ये तो ना जूनियर है, इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, सिर्फ ऋषभ ने बोला है या तुम किसी और रेफरेंस से गए हो। तो तुम्हारे पास जब रिपोर्ट्स होंगे, तुम्हारे पास जब नो मॉडल्स होंगे, तब 5 6 मॉडल्स होंगे, 5 6 रिपोर्ट्स होंगे, तब वो बोलेगा अरे यार इसको सच में कुछ आता है। वरना वो तुमको काउंटर अटैक ही करेगा। ये लिख के लो, वो यही करेगा कि इसको इसको तो हम ऐसे ही इंटरव्यू ले रहे हैं जस्ट बिकॉज वो रेफरेंस से आया है, या इसने थोड़ा बहुत है ना इंटर्नशिप किया आर के एडवाइजरी में। तो मेजर 90% ऑफ द टाइम ही विल लाइक टू सेल यू, क्योंकि वो जो तुमने इंटरव्यू दिया था ना, वो कौन सा बैंड्रा का था, BKC का, जो स्टूडेंट पास स्टूडेंट केस में, उसने भी ऐसे ही बोला। मतलब उसने जो उसका टोन था ना बात करने का, मैं समझ गया, उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, उसको ऐसा नहीं आता, उसने यही बोला है। कौन सर?
वो फर्स्ट तुमने इंटरव्यू दिया था ना, जहाँ पे क्या नाम था उसका, ये पीएक्स कांदी बैंड्रा कांदी ईस्ट में, वो मैं बोला ना, मेरा स्टूडेंट ही था वो। हाँ, कांदी वाली आई गेस। कांदीवली नहीं, हाँ वो तो वो भी नहीं, उसके हाँ पहले तुमने दिया था ऑनलाइन, तुम बोला ना तुम गांव में थे और हाँ हाँ, यस 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 वाले यस interview। यस। उसने मुझे यही फीडबैक दिया। हाँ, इवन कांदिवली में भी उसने वही दिया मुझे फीडबैक कि वी आर लुकिंग एट अदर कैंडिडेट्स एज वेल, बिकॉज तुमने वहाँ पे सिर्फ ब्लू स्टार की बात की और किसी की बात नहीं की तुमने, ओके। समझे? हाँ ओके ठीक। ओके ओके गाइस, विल स्टॉप फॉर टुडे। others please write and start writing the conference call. Result season almost खत्म होने, मतलब almost half हो गया है, it is just 15 days, so almost majority of the results are out. FMCG companies, 4 FMCG, 4 autos and 4 your retail या tourism, whatever sector you like, जो तुमको समझता है, जो you like, मतलब whichever sector you understand. If I ask you questions on that, you should be able to answer on the companies. So 4 automobiles, 4 FMCG, and 4 tourism or maybe retail or this footwear or apparels, whichever thing you feel that you use the product or the difference between that products. So 12 तो मिनिमम 15 होने चाहिए, इनफैक्ट 15 तो reports you should have this in this month. So till May end you should have at least 15 reports, and that is your task. You have a lot of time, you have almost 2 weeks. जो मैंने बताया है वो बनाना है तुमको, एंड उसके साथ साथ इंडस्ट्री रिपोर्ट भी बैक एंड पे चालू होना चाहिए तुम्हारा, बिकॉज यू हैव ऑलमोस्ट 12 to 15 आवर्स अ डे। तो चलो तुम 12-10 घंटा भी काम करते हो, 10 घंटे में तो आराम से एक रिपोर्ट तो बन ही सकता है, एक क्या 2 रिपोर्ट बनते हैं 10 घंटे में। इट्स अप टू यू हाउ मच टाइम यू पुट टू मेक अ रिपोर्ट, एफर्ट्स। पहले बार करोगे गलत होगा ही, वो पकड़ के चलो कि गलत होगा, डोंट सी कि सर गलत हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा है, मुझे आगे कैसे जाना है। whichever format it is, doing is important. It's not कि सर मुझे समझ नहीं रहा है। if you say something like सर समझ नहीं रहा है, I will ask you क्या समझ नहीं रहा है, इंग्लिश समझ नहीं रहा है तुमको, कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल लिखे है वो कैसे समराइज करना है वो नहीं समझ रहा है। okay, start doing it. Your deadline is May end, 15 रिपोर्ट तो होने चाहिए, then only I will be able to talk to recruiters, यार ये लोग सब कुछ कर रहे हैं इतने टाइम से। okay okay guys, thank you Thank you, I'll sir. just be Thank you, on the sir. line. I'll just be left. Fine. Okay. Thank you guys. Thank you. See you tomorrow. Thank Bye you, bye. sir. Yes. Bye. Thank you, sir. Thank you. सर वो मैंने रिपोर्ट अभी आपके फॉर्मेट में बना के भेजी है आपको। भेजिए क्या, देखता हूँ मैं। हाँ, वरुण बेवरेजेस पर। अब देखता हूँ। सर, हाँ ये जो आप बोल रहे हो अभी रिपोर्ट्स बनाने का, हाँ एम आई मिसिंग समथिंग? हाँ हाँ, वो तो मेरे रिपोर्ट राइट, जो कोर्स मटेरियल है ना, वीडियोज है ना, हाँ सर। तुमने मिस किए होंगे, तो रिपोर्ट राइटिंग के है। अच्छा, मैं शेयर द स्क्रीन। यहाँ पे ना ओके सर। D5 रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग है, यहाँ से है 5 से। ओके सर। हाँ। ये 4 पढ़ लेना, वो इधर तक हो गया है रिपोर्ट राइटिंग, ये अलग था। तो हम्म क्वार्टरली रिपोर्ट यहाँ तक हो गया, हम्म एंड उसके पहले इंट्रोडक्शन सेशन में, देखिए ये तो इंडेक्स मैच था, तो ये D2 सिर्फ 4 हम्म सेशंस हो गए रिपोर्ट राइटिंग के, तुमने मिस किया है। यस सर। ये 4, ये तो ठीक है, न्यूज हाँ। लेटर तुमको आता है। चाहिए तो इफ यू कैन गो ऑल दिस सेशंस, दिस आर 8 सेशंस हो गए ये नए बैच के, तो वो सी वेदर हाउ हाउ फास्ट यू कैन डू इट। ठीक है, राइट सर, चलेगा। ओके यस सर। ठीक, थैंक यू सर। ओके।